आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और लगातार संसद के अंदर आज भी हंगामा रहा। कल जो बड़ी चूक हुई, जिस तरीके से कुछ लोग संसद के अंदर घुस आए, स्मोक बॉम्ब जो है अंदर फोड़े और जैसी अफरा तफरी कल मची वो आपने देखा। आज विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। दोनों सदनों के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। राज्यसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया हंगामा करने की वजह से, और लोकसभा के अंदर स्पीकर को सख्त चेतावनी देनी पड़ी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ा कि यहां अराजकता मत फैलाइए। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं आज पूरे दिन के घटनाक्रम की, और इसके साथ साथ इस वक्त जो खबर आ रही है वो भी आपको बता दें। यूथ कांग्रेस के नेता जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा जो कर्नाटक से आते हैं, दरअसल उनके विजिटर पास पर ये लोग कल संसद के अंदर गए थे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ दिल्ली के अंदर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर लगातार मांग कर रहे हैं कि बीजेपी के सांसद पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब महुआ मोइत्रा का मामला हुआ था उसको तो देश की सुरक्षा के साथ, पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मान करके उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी का ये भी सरकार के लिए एक चेतावनी है। आज युवा, महिला या छात्र इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे संसद के अंदर जाके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। संसद में भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये नौबत आ गई है कि बेरोजगारों को, गृहिणियों को अंदर जाके अपनी आवाज उठानी पड़ रही है, क्योंकि ये सरकार जो है धर्म के नाम पे युवाओं की। तो आपने सुना, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये मांग तो कर रहे हैं बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन फिर साथ साथ कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कल संसद के अंदर दाखिल होकर के ये अपराध किया उनको एक किस्म से क्लीन चिट भी दे रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, देखते हैं। Few notices of adjournment motion have been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. Sir, we all agree that with a heavy heart that the unfortunate incident which occurred yesterday was a serious incident concerning the safety and the security of honorable members of parliament. We have to appreciate that honorable speaker promptly held the meeting with all the floor leaders and listened to their suggestion for the further strengthening of the security in the parliament premises. Some of these suggestions given have already been implemented. As Honorable Speaker observed this morning also that in future further measures will be taken to strengthen the parliament security. In my opinion, this matter concerns us all and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone on such issues. हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसमें काम करना है. In the past also, many such incidents have been taken place. I am not comparing the past incidents and defending the today's incident, but we have to learn lesson from our past to bring the bright future. On 11th April 1974, the previous incident I am quoting, sir. On 11th April 1974, one person named Shri Ratan Chandra Gupta shouted the slogan from the visitors gallery. Besides carrying two pistols, one object looking like a bomb and some pamphlets. On 26 July 1974, Shri Biplav Basu caught carrying the dagger hidden on his person, trying to enter the visitors gallery.
On 26 November 1974, Sri Satyajit Singh, son of Sardar Sri Surendra Singh, carried the explosive and a dagger hidden on his person to the visitors gallery. On 9th and 10th January 1999, consequently on 2 days, Sri Badri Prasad and Sri Pushpendra Chavan respectively jumped from the public gallery to the chamber of Lok Sabha. So as I have already said, we are not comparing, but these incidents are unfortunately happening. This kind of unfortunate incidents are happening since beginning. Shouting slogans, throwing papers, pamphlets, and even jumping from the galleries of the houses. I have many such incidents, sir. We all understand that House of the Parliament are independent for protecting their privilege and the immunities for the efficient discharge of the function. Honorable Speaker is the custodian of the Parliament House complex, and security, internal security of the Parliament House is under the purview of the Honorable Speaker. I want to emphasize that in the past such matters have always been dealt according to the direction of Honorable Speaker and the guidance of Honorable Speaker, sir. This kind of incident broadly can be dealt in two manners. This incident is clearly a grave contempt of this House, and this House has at the liberty to deal this issue as per the Constitution and the rules of the procedure and the conduct of the business. From the point of view of the violation of other laws, appropriate agencies will be dealing with this incident. As the Speaker, appropriate agencies will be dealing with the issues. This incident as per the law of the land. On this, Speaker has already written letter to the Home Secretary for the high-level inquiry, sir. Inquiry has already been initiated, sir. Already inquiry शुरू हो चुका है, सर. ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था, उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे. माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है. इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए. सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं. बहुत महत्वपूर्ण बिल है. ये विनंती करते हुए हाउएवर सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं. आई एम सॉरी टू से दैट it has become the habit of some members to politicize all the issues. I once again request them not to politicize the issue. Sir, and one more resolution I would like to bring before this House, sir. Sir, with your permission, I move the following. That this House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuriakos, in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolved that above-mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). Thank you, sir. The question is that the motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे लोकसभा के अंदर, और उन्होंने कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को देखना चाहिए. फिर उन्होंने कई सारे उदाहरण गिनाए.
कि कैसे पहले भी ऐसा हो चुका है। लोग जो विजिटर गैलरी होती है वहां पर आते हैं और वहां से कुछ लोगों ने कभी नारेबाजी की, कभी कागज के गोले फेंके। उन्होंने एक उदाहरण बताया जिसमें एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर आ गया था, बम जैसी कोई चीज देखने वाली उसके हाथ में थी, वो विजिटर गैलरी के अंदर आ गया था। तो ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस पर जो भी कार्रवाई करनी होती है वो स्पीकर करते हैं, क्योंकि स्पीकर जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्पीकर के अंडर ही आती है सारी सुरक्षा भी और सारा मैनेजमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो भी पार्लियामेंट हाउस का होता है। इसलिए वही कार्रवाई पहले भी करते थे, इस पर भी कार्रवाई वही करेंगे। इसमें सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है। लेकिन जो विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे थे या हंगामा कर रहे थे, पहले राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया और अब कुछ सांसदों के सस्पेंशन का मोशन मूव किया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, और उसको भी सदन ने स्वीकार कर लिया। यानी अब विपक्ष के ऊपर, सांसदों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है और सरकार ये कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच ऑलरेडी चल रही है और जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले के पूरी तह तक जाया जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे देखते हैं, पहले तो आप इस पर विपक्ष का क्या रिएक्शन होने जा रहा है विजय लक्ष्मी, ये बताइए। इस मामले पर गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर जो बातें हुई सदन में, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया। देखिए सौरभ, विपक्ष की मांग क्यों है, गृह मंत्री आए। विपक्ष का कहना है कि भाई भारत की जो पार्लियामेंट है वो भारत का एक तरीके से हमारी सॉवरेनिटी की प्रतीक है, और अगर उस पर हमला है तो ये एक तरीके से भारत पर हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए। और क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जो है गृह मंत्रालय के अंदर आती है, इसलिए गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए और इस मसले पर अपना जवाब जो है वो देना चाहिए। एक बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है, हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे कमीशन के लिए मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है और हाईकोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई है। फिर आपको बता दें, कुछ याचिकाकर्ता वो गए थे कि जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पूरा सर्वे और मैपिंग की जा रही है, उस तरीके से ये श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की भी ऐसे ही सर्वे के जरिए पूरी की पड़ताल होनी चाहिए। और हाईकोर्ट में जाकर के ये अर्जी लगाई गई थी, हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे कमीशन को मंजूरी, हाईकोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो जिस तरीके से एएसआई आप देख रहे हैं कि जांच कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं या नहीं है, ऐसे इस पूरे मामले में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर भी ऐसा सर्वे किया जाएगा। सर्वे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है और इस मामले पर भी आप देखेंगे कि आगे चल करके खूब राजनीति होगी और कई लोगों के बयान तो अभी आना बस आते ही होंगे इस पर। खासकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से वाराणसी में और उस तरीके से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे कमीशन को मंजूरी। हर्षवर्धन जी कैसे देखें इस खबर को? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक सा, जिसको कहें कि अगर जिसको बार बार कहा जाता है कि न्याय होना चाहिए क्या, तो भाई ये तो बहुत स्वाभाविक है ना। आप किसी भी मसले को टालते रहेंगे, किसी भी जख्म को नासूर बनाते रहेंगे, ये संभव नहीं है। और आज के समय में जब दुनिया भर की तकनीक आ गई है, दुनिया भर के साक्ष्य प्रमाण जुटाने के तरीकों में तेजी आ सकती है, तो ये बहुत स्वाभाविक था और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है कोई भी विवाद आज का आधुनिक भारत वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जब इतनी तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हों तो उसमें किसी भी वजह से किसी के मन में, अगर दो पक्षों के मन में, दो समाज के लोगों के मन में किसी तरह का विद्वेष है और किसी वजह से है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो उसके आधार पर निकल आए उस पक्ष को उसे देना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए अब इस पर राजनीति तो होगी। मैं अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात कहा था, ये मामला अब रुकेगा नहीं। वाराणसी के अंदर एएसआई का सर्वे चल रहा है और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सर्वे को अनुमति दिया जाना, बार बार इसमें बात कही जाती है ये पेंडोरास बॉक्स है, कहां जाकर के ये सिलसिला रुकेगा, ये तर्क दिया जाता है। नहीं सौरभ जी, इसमें एक बात मैं कहूँ, देखिए हम लोग बहुत सी चीज़ों की चर्चा करते हैं तो कई बार हम डरते हुए करते हैं कहीं हिंदू मुसलमान न हो जाए, लेकिन होता तो है। अब राम मंदिर पर क्या यही तरीका सिर्फ होता तो कितना अच्छा रहता। कार सेवकों पर गोली नहीं चलानी पड़ती तो कितना अच्छा होता। कोई अलग से जाकर उसके ऊपर आरोप लगते और उसको बरसों बरस कोर्ट में जाना पड़ता, ये अच्छा होता क्या? अच्छा है कि अब न्यायालय के जरिए बाकायदा, कहीं कोई आंदोलन नहीं, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है, कोई नारे नहीं लगा रहा है, कोई दूसरे पक्ष को भड़का नहीं रहा है, ये तो अच्छी चीज है ना। इसको तो आप लोकतंत्र के लिहाज से संवैधानिक दायरे में श्रेष्ठ जो कार्रवाई हो सकती है वो इसको आप मान सकते हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे न्यायालय इतने सक्षम हैं और एक इतने परिपक्व लोकतंत्र हैं कि हम इस तरह की सारी मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं। जहां तक ओवैसी जी की बात है,
ओवैसी जी हो या इस तरह के ऐसे लोग जिनको इसी भावनाओं को भड़का कर राजनीति करनी है, वो पहले भी करते आ रहे थे, अब भी करते आ रहे हैं। ये अलग बात है, अब उनकी सुनने वाले लोग कम हैं। और वैसे भी एक राज्य में सरकार में शामिल थे ओवैसी जी, उससे भी आउट हो चुके हैं। इसके जो कानूनी दलील दी जाती है, मैं आपके पास आ रहा हूं, वो कि जो पूजा स्थल अधिनियम है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कहता है 47 के बाद से जिसका जो स्वरूप है पूजा स्थल का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। ये हालांकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन तर्क ये दिया जाएगा कि उसकी अवहेलना है। देखिए, कोर्ट का आदेश क्या है, 16 नवंबर को इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी मयंक कुमार जैन न्यायाधीश के अंडर, और आज उसका फैसला आया है। तो इसमें तो यही कहा गया है कि इसकी वीडियोग्राफी होगी और फोटोग्राफी होगी। अभी तो ये जांच होगी। जो याचिकाकर्ता ने कहा था कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्म का जो जन्म स्थान है वो तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी, उसकी जांच होना चाहिए। तो अभी वीडियोग्राफी होगी, इसकी फोटोग्राफी होगी, जांच होगी, सर्वे होगा, उसके बाद ये सब निकला जाएगा कि वास्तव में वहाँ पर जन्मभूमि थी या नहीं। एक मिनट जरा इस पर और डिटेल ले लें, खबर पर बात करें, उसके बाद करेंगे। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ। रुचि, जरा बताइएगा विस्तार से, क्या आदेश है, कहां सर्वे करने के लिए कहा गया है? सुन पा रही है रुचि मुझे आप? जी बिल्कुल, जी बताइए सर। अब बात करेंगे रुचि, इस पर और डिटेल हमको दे पाएंगी। जो लोग, अगर आपने वो जगह नहीं देखी है, आप मथुरा अगर नहीं गए हैं कभी, तो यूँ समझिए कि एक तरफ जो है वो शाही मस्जिद है, इसे आप कहते हैं ना, वो बड़ी मस्जिद है वहाँ पर, और उसके ठीक सामने जो है श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है। लेकिन मान्यता ये है, आस्था ये है कि जिस जगह पर मस्जिद है, दरअसल असली श्री कृष्ण जन्म स्थान वही है। उसके नीचे मंदिर हुआ करता था, गर्भगृह उसके नीचे ही है वो असली, और वो मंदिर तोड़ करके उसके ऊपर ये शाही मस्जिद बना दी गई थी। और ये विवाद चल रहा था बड़े बरसों से। इसमें कुछ दशक पहले दरअसल हुआ ये था कि जो शाही मस्जिद की कमेटी थी और कुछ हिंदू संगठनों ने आपस में समझौता कर लिया, जिसके मुताबिक ये तय हुआ था कि सामने हम मंदिर बना देंगे और ये विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मामले को लोग अदालत में लेकर के गए कि कोई समझौता कर नहीं सकता, इतनी बड़ी हिंदू आबादी है, उनकी आस्थाएं, उनकी बिना पर कोई कैसे जाकर के दस्तखत कर सकता है किसी समझौते पर। तो इसलिए वो समझौता माना ना जाए और इस पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराया जाए और ये पता लगाया जाए कि इसके नीचे वाकई मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। अब सर्वे कहाँ करने के लिए, कितने परिसर के अंदर करने के लिए कहा गया, ये सब डिटेल में आएगा। हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर, चूंकि आप वहां जाते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक बार जरा विवाद बता देंगे? बिल्कुल, जो आपने ये कहा ना, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और आप में से जो भी कृष्ण जन्म स्थान गए होंगे, एक तो वृंदावन में आप बांके बिहारी जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण जन्म स्थान है जहाँ जरा एक बार, क्योंकि विशाल जुड़ गए हैं, अब वो हमें इस खबर पर और डिटेल दे पाएंगे। विशाल, जरा पूरा आदेश बताइएगा विस्तार से, क्या है हाईकोर्ट का? पकड़े बैठे रहो। विशाल, पिन निकाल तो दोबारा, आप अपनी बात पूरी करें हर्षवर्धन जी। तो वहां पर वो आप जाएंगे तो मंदिर जहां मूर्ति है वो तो एक स्थान है जहां अभी भगवान कृष्ण की पूजा होती है प्रतिदिन, लेकिन आप वहां जाएंगे तो नीचे तहखाना है, सीढ़ियों से आप उतरते हैं और वहां जाके आपको समझ में आता है कि जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उसकी जो दीवार लगती है उससे ठीक बगल में आपको ईदगाह मस्जिद दिखती है। अब आप जब ऊपर जाते हैं वहां से साफ साफ दिखता है, तो आपको दिखता है कि वो ईदगाह परिसर, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर इतना महत्वपूर्ण स्थान है उनके लिए तो उसकी रखरखाव तक क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि तो वो तो उन्हीं के पास है। ईदगाह परिसर में आपको किसी तरह का आस्था का प्रमाण नहीं मिलेगा। और ये मैं बहुत, चूंकि अपनी आंखों से देखी हुई चीज बता रहा हूं, जिस तरह का दृश्य वहां होता है, उसके अंदर बकरियां बनी हुई हैं, कोई सो रहा है, और बहुत ही, मतलब मैं नहीं समझ पाता कि अगर आपके लिए इतना आस्था का केंद्र है तो एक तरफ तो चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान हो, वहां हिंदू पूजा कर रहे हैं, वहां उसको पूरी तरह से अपने सम्मान से रखते हैं, और आप उसको उस तरह से नहीं रख पाते हैं। कहीं न कहीं वो वाला सवाल आता है जो बार बार इस्लाम कहता है कि कहीं किसी जगह पर किसी के आस्था स्थल को, उपासना स्थल को तोड़कर कुछ बनाया गया तो हमारे लिए पाक नहीं हो सकता। इस बड़े